and I have a very strong inner assurance that it is God who has begun the good work of this Bible study और among us. और मुझे पूरा भरोसा है कि ये परमेश्वर का अच्छा काम है जो परमेश्वर ने बाइबल का अध्ययन को शुरू किया हमारे बीच में, So that God is able to enlighten us ताकि with the light which परमेश्वर हमें प्रकाशित करे उसके स्वयं की ज्योति से। Amen. आमीन। And in this way, in His light, may we be able to see all the truth. और उसके ज्योति में हम उसके सारे सच्चाई को देख पाए। And as we begin to know in His light what He has given to us, the truth that He has given to us, that truth will set us free. और उसके उजाला में जैसे हम उसके सत्य को देखेंगे, वो सत्य हमें छुटकारा देगा। Why does the Bible says that the truth sets you free is because enemy wants to blinden us and put us in darkness and and make us hopeless and feel defeated and feels fearful of what will happen to us and our future and all those fear all mankind basically are heavy laden and burdened by this fear and hopelessness. और शत्रु क्या करता है? शत्रु झूठ को फैलाता है और अपने अंधेरे के द्वारा हमें गुमराह कर देता है, हमें भड़का देता है, हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। यही है शत्रु का योजना सारे संसार के लिए कि अपने अंधेरे में सबको गुम कर दे, अपने अंधेरे में सबको भड़काए और सब भटक जाते हैं उस शत्रु के अंधेरे में। So everybody is fearful about their life and they do not have a hope like how children of God are filled with hope. और सारे लोग भयभीत है और जैसे परमेश्वर के बच्चों के पास आशा है वैसा आशा किसी के पास नहीं। We are the blessed people who have a great hope now for what God has kept for us. और हम तो धन्य लोग हैं क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें रखा है उसमें हमारे पास एक सचमुच आशीषित आशा है। If we don't understand what God has kept for us, for a believer, for a child, the child can easily be discouraged and lose strength and become weak and become fearful and become hopeless and he will be just like an unbeliever. और अगर परमेश्वर के बच्चे नहीं समझेंगे कि परमेश्वर का मिरास क्या है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, तो हम आसानी से निराश हो जाएंगे, हम आसानी से भटक जाएंगे, हम आसानी से अपने आप को नीचा महसूस करेंगे। I have given enough outline of chapter 2, I believe. Now और मैंने पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 का काफी रूपरेखा दे चुका हूँ। Now I think we must enter into the depths of each verse it is mentioned in this chapter 2. और अब ये समय आ गया है कि हम हर एक वचन के गहराई में जाए। It is so surprising to me that each time when I'm reading, the Lord is giving so much meat, every time out of each word being revealed. और ये सचमुच मुझे आश्चर्य करता है कि हर बार जब मैं ये परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ, पहला कुरिन्थियों का अध्याय 2 पढ़ता हूँ, उतना ज्यादा मांस मुझे मिलता है परमेश्वर की ओर से, उतना ज्यादा रस मुझे मिलता है परमेश्वर की ओर से। Before I can share that, I feel like I should allow our brothers who have been deprived from sharing because of me spending a lot of time giving outline. I feel that I should give chance to our brothers to share from the
the enjoyment of any verse from chapter 2. God has given them in the hearts based upon the outline. Since now we know the background very well. और जो मैंने रूपरेखा दिया है अध्याय 2 का, वो अध्याय 2 के रूपरेखा के आधारित अगर कोई भाई जो अपना आनंद, जिसने परमेश्वर का वचन का उसे आनंद मिला हो, परमेश्वर का वचन का कोई गहराई मिली हो, वो हमारे साथ बांट सकता है। उस आनंद को हमारे साथ बांटो, ताकि जैसे हम परमेश्वर के वचन को गहराई में जा रहे हैं, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं मौका देना चाहता हूँ सारे भाइयों को कि जो आनंद उनको मिला है वो हमारे साथ बांटे। Amen. So Amen. why we go for outline is basically to understand the context of the message of the writer. और रूपरेखा को क्यों हम देख रहे थे इतने समय से अध्याय 2 के, पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 के, ताकि हमें समझ में आए कि ये किसके बारे में या किससे संबोधित किया जा रहा है अध्याय 2 में। Otherwise, people can take the verse, any verse out of context, and then take the meaning and stretch it so far. And I've seen people gone wretched, digressing from the real topic and the real subject, and they take meaning altogether totally, which is absolutely wayward, wrong. क्योंकि मैंने देखा है कि लोग जो विषय है उसको बहुत गलत तरीके से ले लेते हैं, कुछ अलग ही मतलब निकाल लेते हैं, कुछ अलग ही उसका मतलब निकालते हैं या अर्थ निकालते हैं। And so it should not happen. Therefore, I keep very careful. I study, check. I turn the paper left, right. I read many chapters, and I even sometimes, in order to understand Corinthians, I have to go to other books also. So in this way, comparing each books with other books, each chapter with other chapter, and in this way, the Lord begins to bring a clear base and understanding of why the message, why that particular chapter was written in the way it was written. और मैं काफी चैप्टर्स का अध्ययन करने के बाद, आगे पढ़ के, पीछे पढ़ के, अलग अलग किताब को पढ़ के, ये वचन का क्या असली अर्थ है, ये वचन किसके बारे में कह रहा है, ये वचन का मतलब क्या है, ये मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, ताकि लोगों के अंदर कोई गलतफहमी न रहे। The beauty of this is like each chapter is connected with another chapter. और इसकी खूबसूरती यही है कि हर एक चैप्टर जो है वो दूसरे चैप्टर के साथ जुड़ा हुआ है। And each book is connected with other book also. और हर एक अध्याय जो है वो दूसरे अध्याय के साथ जुड़ा हुआ है। So when we read 1 Corinthians and when we read 2 Corinthians, when we read Colossians and Ephesians, and we read what written in Matthews, in this way what happens is things become more clear for us to understand what Paul actually meant. और जैसे हम दूसरा कुरिन्थियों को पढ़ते हैं, फिर कोलोसियन को पढ़ते हैं, फिर एफिसियों को पढ़ते हैं, हम लोगों को और ज्यादा स्पष्ट होता है कि प्रेरित पौलुस हमसे क्या बात कर रहा था। For example, like as beautifully quoted by our dear brother Chebu, like concerning the mystery and concerning the hidden secret. और जैसे भाई जेबू ने हमारे साथ बांटा, जो रहस्य है, जो गुप्त बात है प्रभु यीशु मसीह का, वो किस प्रकार प्रकाशित होता है अध्याय 2 में। And so for all that we need Old Testament and New Testament support, and we understand, we arrive at the real conclusion of the particular verse study which we are doing. और पुराना करार का अध्ययन करके, नया करार का अध्ययन करके, ये सारे अध्ययन करने के बाद हम लोग एक नतीजे में पहुंचते हैं कि हाँ, इसका अर्थ यही है। And so between all the books of the Old Testament, New Testament, we see Genesis and Revelation as the cover book, where all other things come under it, where Genesis talks about extreme past and Revelation talks about extreme future, and between the two are the old and the new, the other letters, and then beautifully we are able to see the entire picture of God's heart.
और जैसे हम लोग बाइबल का अध्ययन करते हैं, हम देखते हैं उत्पत्ति के किताब से बाइबल शुरू होता है और प्रकाशित वाक्य की किताब में बाइबल खत्म हो जाता है। ये उत्पत्ति का जो किताब है वो हमें हमारे भूतकाल के बारे में बताता है, वो हमारे अतीत सबसे पहली शुरुआत के बारे में बताता है। और प्रकाशित वाक्य का किताब हम लोग हमारा भविष्य, जो भविष्य का अंत है, हमारे भविष्य का अंत कहाँ होगा वो बताता है। और ये दो किताब के बीच में, उत्पत्ति के प्रकाशित वाक्य के बीच में, परमेश्वर ने पूरा अपना हृदय को खोल के रखा है हमारे सामने। और परमेश्वर का हृदय की खूबसूरती को हम लोग ये शुरुआत से आखिरी के किताब में देखते हैं। Amen. So, with this, I let all our brothers, if any brothers want to share, I want to give time to them. And if God gives me time, then I will. और मैं मौका देना चाहता हूँ सारे भाइयों के लिए, अगर कोई भाई वचन बांटना चाहता है तो ये समय है वचन बांटने के लिए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 से। So today, instead of outline, or today or tomorrow or whenever, after all our brothers speak, then I'll try to give my gist also. और सारे भाई जब अपना हृदय में जो है, उनको जो परमेश्वर ने उनसे बात किया वो हमारे साथ बांटेगी, उसके बाद में जो है उसका रूपरेखा, उसका अर्थात क्या है वो बताऊंगा। To help begin with the brothers, I can help them with some tips, certain keywords like wisdom, word, keywords which is in chapter 2, like wisdom, and then we can say regarding mystery, then hidden wisdom, and then और मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ मदद करने के लिए। बुद्धि, रहस्य, छुपा हुआ रहस्य, and then all things, और all उसके बाद things, सारी बातें, deep things of God, गहरी चीजें परमेश्वर की, and then what we have received from Him. परमेश्वर से हमने क्या प्राप्त किया। And so these are just various topics in chapter 2, which any brothers can feel like sharing. तो ये विषय है अध्याय 2 में, अगर किसी भाई को इसके बारे में बांटना है तो वो बांट सकता है। Apart from many other verses, which probably God must have touched you from. और भी बहुत सारे वचन हैं, आप किसी से भी बांट सकते हो। Praise the Lord. Okay. So I do not have any guilt feeling that I'm taking too much time and speaking so much and not letting any other brothers speak. It's not. For that reason, I humble myself and let other brothers speak. और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हमेशा मैं ही बोलता रहता हूँ और मैं ही प्रचार का मतलब या अर्थ बताता रहता हूँ, और इसीलिए मैंने अपने आप को नम्र करके मैं चाहता था कि दूसरे भाई लोग कुछ बोले। Okay. So I just want to point out that which connects chapter 1 and chapter 2. और अध्याय 1 और अध्याय 2 को क्या जोड़ता है? That is verse 21 of chapter 1. और वो है अध्याय 1 का वचन 21। Can we read that? For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना। That's it. So, regarding the problem of the Corinthian, what Paul is trying to explain to them is that
you are not like the worldly people. You are special people. You are born of God. God's Holy Spirit dwells in you, and और you are यहाँ not पे like the worldly. You are not like the प्रेरित worldly पौलुस, people. Wait. You are not like the सॉरी, worldly people. They do not know God. In all the wisdom, whatever they must have tried, they have ended up not knowing God at all. But और प्रेरित पौलुस जो है यहाँ पे कुरिन्थी कलीसिया का समस्या को समझ के कुरिन्थी कलीसिया को कहता है कि तुम वो सामान्य लोगों के समान नहीं हो, तुम संसार के लोगों के समान नहीं हो, तुम खास हो, तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का आत्मा है और तुम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त किए हो, तुम्हारे पास संसार के जैसा ज्ञान नहीं है। the worldly people do not know God. संसार के लोग परमेश्वर को नहीं जानते। And this is the solution which Paul is trying to give to the problems of the Corinthians. और यही हल है जो प्रेरित पौलुस दे रहा है कुरिन्थियों के कलीसिया को उनके समस्या के लिए। So to deliver the problem of the Corinthians, the wisdom of God is what they needed. Paul knew this. और प्रेरित पौलुस जानता था कि अगर कुरिन्थी की कलीसिया को अपने समस्याओं से हल चाहिए, अपने समस्या से छुटकारा चाहिए, उसका उत्तर, उसका जवाब सिर्फ एक है, वो है परमेश्वर का बुद्धि। While Satan was trying successfully to manage people, to put them in darkness and in strife and in division and fight, it is the light of the wisdom of God. If it had descended upon them, then they would know that what I'm doing is not right, and they would know the correct way how to conduct them in the church. और शैतान कितना कोशिश करता है कि हम लोगों को, कलीसिया को जो है वो अंधकार में गुम कर दे, गुमराह कर दे, हम लोगों को अलग अलग प्रकार के बंधन में, अलग अलग प्रकार की बेड़ियों में बांध के रखे, हमें अलग अलग प्रकार के उलझनों में बनाए रखे। लेकिन परमेश्वर अपने बुद्धि के द्वारा हमें प्रकाश देता है कि हम ये सारे बंधन, ये सारे बेड़ियां, ये सारे उलझन से छुटकारा पाए। And so what does Paul says in 1 तो पौलुस क्या कहता है? Yeah, so he says that verse 10, chapter 2 verse 10. और अध्याय 2 का वचन 10, पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 10। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। See that the Spirit searches all things, and आत्मा सब चीजों को जांचता है, all things, सारे चीजों को जांचता है। Now I want you all to underline this word all things very strongly, bold it, make it very strong, and first our subject of meditation will be this. It is on this all things is a very, very serious meditation which every believer, every Bible, every child of God should know. और मैं चाहता हूं कि आप ये बात को, सब बातें, परमेश्वर का आत्मा सब बातों को जांचता है, तो इसमें जो सब बातें हैं, मैं चाहता हूं कि आप उस पर रेखा कीजिए। मैं आपको ये बात समझना है एक बहुत बेहतर रूप से, पूरे गहराई से, कि परमेश्वर का आत्मा क्या जांचता है। परमेश्वर का आत्मा सब बातों को जांचता है। So we read in Matthew chapter 11 verse 27. हम लोग मत्ती का अध्याय 11 वचन 27 में देखते हैं। Look at what the Lord is saying. और यहाँ पर देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई सब कुछ। See that all things are there mentioned. और मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, सब कुछ। Do you want me to read ahead? Yeah, that's fine. All things are delivered unto me by my Father, and no man knows the Son but the Father, neither no man knows the Father save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him. What does this scripture mean? Okay.
और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। So Father God, Father God, decided that it pleased him not to select everyone, but few people, absolutely worthless people, fools like us, fools like the Corinthian believers, and it pleased him to deliver all things through Christ. I mean, that I will tell how it pleased him. So first he does और it by delivering all things पिता को to ये the भाया, Son of God. और पिता को ये भाया कि कुछ लोग जो हम जैसे कुछ लोग हैं जो किसी काम के नहीं, जिनमें कोई गुण नहीं, जो निर्बुद्धि है, हम जैसे लोगों को अपने आप को हमारे ऊपर प्रकाशित करे, अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करे। वो कैसे? अपने पुत्र के द्वारा, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता जो है अपने आप को हमारे ऊपर, हम जो चंद लोग हैं, कुछ लोग हैं, उसके ऊपर प्रकट करता है। Need grace for this. All things are delivered unto me by my Father. Means if God delivered all things to Christ. And while Christ was living in the earth, he was the only person who knew God. मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, सब कुछ पिता ने जो है वो पुत्र को दिया हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह एक था जो पिता को जानता था और जो पिता के बारे में, जो पिता को समझता था। And only Father knew who the Son is. और सब पिता जानता था कि पुत्र कौन है। In the Old Testament, we see there is a mention of God, 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 but they didn't knew them as Father, and they did not know him. It is Jesus Christ who declared him first. और हम लोग पुराने करार में भी देखते हैं कि लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन वो सब उसे प्रभु प्रभु परमेश्वर परमेश्वर कह के पुकारते हैं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो परमेश्वर को पिता के रूप में जानता था, जो प्रभु परमेश्वर को पिता के रूप में जानता था और जिसने हमारे ऊपर प्रकट किया। So the revelation of Father only Son can give. तो पिता का जो प्रकटीकरण है, पिता का जो प्रकाश है, वो सब पुत्र दे सकता है। And who will reveal the Son और except the Father? पुत्र किसके ऊपर ये सच्चाई को, ये रहस्य को प्रकट करता है? About the Son of God, who will reveal the Son of God? सॉरी, परमेश्वर का पुत्र को कौन प्रकट करेगा? It is the Father. परमेश्वर का पुत्र, It is the Father. परमेश्वर का पुत्र को हमारे ऊपर कौन प्रकट करेगा? परमेश्वर का पुत्र को पिता प्रकट करता है। This is they are both sitting by side by side and like a mirror pointing out to the other. This will point to this, this will point to this. और पिता और पुत्र आईने के समान है, दो आईने के समान है जो आमने सामने रखे हुए हैं और जो एक दूसरे को उंगली दिखाते हैं या जो एक दूसरे की ओर मार्गदर्शन करते हैं। So when the Son of God comes to know that it is the will of the Father that I should be revealed to them, then he reveals the Father to them. और जब परमेश्वर के पुत्र को मालूम पड़ता है कि ये पिता का इच्छा है कि मैं अपने आप को प्रकट करूं इसके ऊपर, तो परमेश्वर का पुत्र अपने आप को प्रकट करता है उसके ऊपर। So to know the Father, we need to know the Son. तो पिता को अगर हमें जानना है तो पुत्र को जानना होगा। But how can I know the Father without first knowing the Son? Then who will make me to know the Son? लेकिन मैं पिता को नहीं जान सकता जब तक मैं पुत्र को नहीं जानूंगा। तो पुत्र को कौन प्रकट करता है? It is the Father who wills who should know the Son. That is why Paul says, it pleased the Father to reveal his Son in me. So they both are ministering to one और ये another. पिता का
ये पिता का इच्छा है कि हम पुत्र को जाने, इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि ये पिता को भाया, ये पिता की इच्छा है कि मैं पुत्र को जानूं। See, today I'm going to open up the ministry of all three people, Father, Son, and the Holy Spirit, what they're actually doing inside our spirit. If we get to know this, then it becomes, the wisdom will settle in. We will understand the ministry. Then we will be able to cooperate the ministry of all the three. और आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा असल में हमारे अंदर क्या करते हैं। अगर हमें ये बात का समझ में आ जाए कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा क्या करते हैं, तो परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर समा जाएगी। Okay, so it is very clear here, according to this verse, that understand whoever the Son wills, only He will reveal to them who the Father is. पुत्र की जिसको इच्छा होगी, जो पुत्र चाहता है, सिर्फ उन्हीं को वो पिता का प्रकटीकरण, पिता को प्रकट करता है उनके ऊपर। Yeah, you can read the B part of verse 27. और कोई पिता को नहीं जानता, nobody can know the Father except the Son. और कोई वचन 27 हम पढ़ रहे, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। Amen. Amen. So now we need to understand. So once a person becomes born again, immediately he can sense in him like a child of God. He can cry out to Abba Father. He can sense the Heavenly Father's presence coming to him. और जब एक भाई दोबारा जन्म लेता है, तो एक बच्चे के समान वो सचमुच पिता का अनुभव कर सकता है, एक आबा पिता का अनुभव कर सकता है कि आबा पिता मेरे साथ है। And so how this God is this mystery is nothing but God Himself, because how God is one, but at the same time there is an entity which is Father, there's another entity which is Son, and there's altogether another entity which is the Spirit at the same time, and yet that is one. So this is mystery which others cannot understand, and but a child of God is in full peace regarding this. For him it is not three gods, but yet he is now connected to this divine three. और यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर का जो संतान है उसको इस बात में कोई भेदभाव नहीं, इस बात में कोई गड़बड़ी नहीं। वो अच्छी तरह से समझता है ये बात को कि परमेश्वर एक ही है, लेकिन वो एक परमेश्वर के अंदर तीन जन है, एक है पिता, एक है पुत्र और एक है पवित्र आत्मा। ये तीन जन एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के बच्चों को, परमेश्वर के पुत्रों को इस बात में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। We read in 1 Corinthians that the worldly people do not know God, but we have known God, and God is now manifested in three different entities, and this is what is a stumbling block to them, but to us it is peace, to us it is joy, to us it is life। पहले कुरिन्थियों की किताब में हम देखते हैं परमेश्वर की बुद्धि और कि संसार के लोग जो है वो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन हम परमेश्वर को जानते हैं तीन जन में, तीन रूप में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। संसार के लोगों के लिए ये एक ठोकर का पत्थर है, ये बात पे विश्वास करना कि तीन जन एक परमेश्वर है, ये बात पे विश्वास करना उनके लिए मूर्खता है, लेकिन हमारे लिए ये बुद्धि है। So this all things which is mentioned in verse 27 is a very, very not some limited thing or a part. All things of Father God given it to Jesus Christ. And what is Jesus? वचन 27 में सब कुछ जो लिखा गया है, यहाँ पे पिता का सब कुछ जो है वो पुत्र में दिया गया है, जो पुत्र के पास है, जो पुत्र को सौंपा गया है। And then what is this Jesus doing to?
He, और प्रभु he यीशु is, मसीह क्या कर रहा है? through his spirit in us, he is revealing to us what all out of that all things what we have freely received. और पुत्र Freely is giving जो to us. अपने आत्मा के द्वारा जो हमारे अंदर है, उस आत्मा के द्वारा वो प्रकट कर रहा है पिता को, जो हमने मिला है, जो हमने प्राप्त किया है, जो उजाला हमारे पास है, उसके ऊपर जो पुत्र जो है वो अपने आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर पिता को प्रकट कर रहा है। So Jesus is distributing to the church his body, all things which he received from Father God, and he is giving it to the church, and that is and that he is giving it through only one entity. There's only one source of administration. We should know this, how the distribution is happening. This is only through the Spirit, and that is why a believer's spirit should be very, very sensitive and connected to the Holy Spirit, because only through the Holy Spirit channel only, medium only, all things can become ours. What all freely given to us in Christ can become ours. और Through the हमें Spirit. ये बात को समझना है कि पुत्र जो है सिर्फ पवित्र आत्मा के साधन के द्वारा, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को, हम सबको जो है पिता को बांट रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपना जो शरीर है, जो उसने परमेश्वर से प्राप्त किया, जो कुछ उसके परमेश्वर से प्राप्त किया, सब कुछ जो उसने पिता से प्राप्त किया, वो हमें बांट रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। सिर्फ एक ही साधन है जिसके द्वारा पुत्र जो है पिता को हमारे साथ बांटता है, और वो है पवित्र आत्मा। So 1 Corinthians chapter 12, sorry, chapter 2 verse 12. फर्स्ट पहला कोरिन्थियों अध्याय 2 वचन 12। परंतु Why the हमने Holy Spirit has given to us? परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम Why? उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हम उन Praise the बातों को Lord. जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। Exactly. This is that all things. ये है वो सब बातें जो पिता ने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को दिया है। It has given to Christ. Now Christ is dispensing it to the church. तो To पिता ने each पुत्र believer's को spirit, दिया, to the believer's पुत्र spirit. कलीसिया को दे रहा है। But the believer's spirit can restrict according to how much measure he lends open his hand to receive, that much he will receive. लेकिन परमेश्वर के संत, परमेश्वर के बच्चे जो है, जितना अपना हाथों को खोलेंगे, उतना ज्यादा माप में उनको वो पवित्र आत्मा के द्वारा पिता मिलता रहेगा। We know for example, like Peter. We know in Matthew chapter 16 verse 17. हम जानते हैं पतरस के बारे में, मत्ती का अध्याय 16 वचन 17 में। When Christ asked him, who do you think I am? And then when Peter replies, you are Christ, the Son of the living God. What did Jesus reply? और जब पतरस को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, मैं कौन हूँ, क्या तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूँ? और पतरस जो है वो उत्तर देता है कि तुम मसीह हो, तुम जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह हो। तो तब प्रभु यीशु मसीह क्या उत्तर देता है? Verse 17. And Jesus said unto them, ए सिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। Praise the Lord. Amen. So who has revealed the Son to Peter? तो पुत्र को किसने पतरस के ऊपर, शिमोन के ऊपर प्रकट किया? मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। Father God revealed Peter, this is Christ. तो पिता परमेश्वर ने पुत्र को सिमोन के ऊपर प्रकट किया कि ये मसीह है, परमेश्वर का पुत्र मसीह। But Peter did not know Father till then. It is Christ who's telling. It is Christ revealing Peter that the revelation just now what he got. It is Father who gave you. It is that time Father was revealed to him. लेकिन सिमोन जो है वो revealing Father to Peter, and Father is revealing Son to Peter. Awesome. और सिमोन जो है वो, पतरस जो है वो पिता को भी नहीं जानता था,
लेकिन जब उसने पुत्र को बताया कि तुम परमेश्वर के पुत्र मसीह हो, तब पुत्र ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको पिता के बारे में बताया कि तुम्हें ये सत्य, तुम्हें ये प्रकटीकरण जो है देने वाला और कोई नहीं लेकिन मेरा पिता जो स्वर्ग में है। तो पतरस को अभी पिता के बारे में भी मालूम पड़ गया। पिता ने पुत्र के बारे में सिमोन को बताया, पुत्र ने पिता के बारे में सिमोन को बताया। See, so nobody can actually show Father except Jesus Christ, the Son of God. तो कोई भी पिता को दिखा नहीं सकता, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो पिता को प्रकट करता है। You know why others cannot show? Because even all things was revealed to only Jesus Christ, not to others. और So कोई others और cannot tell because it is not revealed to them. और कोई पिता को प्रकट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पूरा पिता, सब कुछ पिता का जो है सिर्फ पुत्र को प्रकट किया गया है, सिर्फ पुत्र को ही प्रकट किया गया। इसीलिए पुत्र जो है वो ही है जो पिता को हमारे ऊपर प्रकट करेगा। Now we'll take another instance. I had been having a great struggle to understand why Moses. अभी हम लोग एक और उदाहरण लेंगे, why Moses and Elijah had come at the Mount of Transfiguration. I had a great challenge in my spirit. और क्यों मूसा और एलिजा आए थे वो पहाड़ के ऊपर जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ था। And many people tell, that Moses and Elijah came to help him understand, what all difficulties Jesus you will go through, you will face through, and you will go to Jerusalem, and then you will be troubled there. You will be as if Jesus did not know anything, and he had to be revealed through Moses and Elijah. और बहुत लोग कहते हैं कि मूसा और एलिजा जो है वो पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु से मिलने इसके लिए आए जब उनका रूपांतर हुआ, ताकि वो उस प्रभु यीशु मसीह को उनकी मृत्यु के बारे में बताए कि तुमको यरूशलेम जाना पड़ेगा, यरूशलेम में अलग प्रकार की यातनाएं तुम सहोगे, इस प्रकार से तुम्हारी मृत्यु होगी। जैसे प्रभु यीशु मसीह को यह बात मालूम ही नहीं था। It's absolutely wrong. According to the scripture, we can say that all things have been delivered to Jesus. Jesus knew it. And I believe that Moses and Elijah must have come to know through Jesus Christ only what all things are going to. परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि सब बातें जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, जो पुत्र को दिया गया है। तो मैं विश्वास करता हूं कि मूसा और एलिजा को मालूम पड़ा कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु कैसे होगा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया होगा अपने मृत्यु के बारे में। When he is meeting Moses and Elijah, he is not meeting them in the capacity of a fearful, humble servant human being. His divinity was manifested. There he was God, and Moses and Elijah are his creation. They cannot teach Jesus what is supposed to come. They cannot reveal to him. All things have not been delivered to him through Moses and Elijah. All things have been delivered only to Jesus Christ. So Jesus Christ is the one who will tell Moses and Elijah what is going to happen. Then Moses and Elijah understood the Old Testament scripture about the prophet whom he spoke about. और जो प्रभु यीशु मसीह मूसा और एलिजा से ऐसा एक नम्र इंसान के रूप में या मनुष्य के रूप में नहीं मिला, लेकिन वो उनका सृजन करता है, वो उनको बनाने वाला है, वो सबसे महान सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और उससे मिलने आता है मूसा और एलिजा। जिनको मूसा और एलिजा ने बनाया कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह था जिन्होंने मूसा और एलिजा को बनाया था। और मूसा और एलिजा प्रभु यीशु मसीह से सीखते हैं कि असल में जो नबियों के बारे में बात किया गया पुराने करार में, वो नबी कौन है। We know that in Matthew chapter 17 verse 5, what happened? These disciples, they want to make 3 tabernacles. They want to hear from Jesus and Moses and Elijah, thinking like Jesus is one among them. No. And immediately God had to intervene. Father God intervened. Listen, this particular Jesus, forget about Moses and Elijah. This is my beloved son. You don't hear others. You hear him, because all things have been delivered to him.
और मूसा मती का अध्याय 17 वचन 5 में जब हम देखते हैं कि शिष्य लोग कहते हैं कि हम 3 तंबू बनाएंगे, एक तंबू मूसा के लिए, एक तंबू एलिजा के लिए और एक तंबू आपके लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए। जहां पे उनको लगता है कि मूसा, एलिजा और प्रभु यीशु मसीह एक है, पर ऐसा नहीं है। तब पिता परमेश्वर को खुद आना पड़ता है, अपना वाणी देना पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह एक लौता पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह है जो मेरा पुत्र है, और उसे छोड़ के और कोई भी मेरे बारे में प्रकट नहीं कर सकता। And and Jesus said to Peter that blessed are you, Simon Bar-Jonah, because flesh and blood has not revealed to you, but it is my Father in heaven who revealed to you. I mean, nobody heard the voice of the Father there. Peter did not hear that voice, any audible voice, but Jesus perceived, and Jesus said, Jesus in the Spirit knew, because it is the work which has happened inside Peter's spirit. और जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें ये मांस और लहू से ये सत्य प्रकट नहीं हुआ कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, जीवित परमेश्वर का पुत्र हूँ, लेकिन ये सत्य तुम्हें स्वयं परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने प्रकट किया है। तब पतरस को ये बात पता ही नहीं था, तो पतरस को ये बात मालूम ही नहीं था, ये पुत्र है जो प्रकट करता है। What did Paul say about himself in Galatians chapter 1 verse I think 15-16? और प्रेरित पौलुस अपने बारे में क्या कहता है गलतियों के किताब में अध्याय 1 वचन 15-16 में? परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझसे अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उनका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से चला ली। It pleased the Father to reveal the Son in me. See that? So Paul, it is in the spirit of the Paul got the revelation of Jesus Christ, who Jesus Christ is. और ये पिता का इच्छा हुआ कि वो पुत्र को प्रेरित पौलुस के ऊपर प्रकट करे। ये कैसे हुआ? कैसे? ये आत्मा में होता है। जैसे पतरस को परमेश्वर ने, पिता ने उसके आत्मा में पुत्र के बारे में प्रकट किया था, तभी कोई वाणी नहीं हुई थी, वैसे ही प्रेरित पौलुस को परमेश्वर पिता ने पुत्र के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसके आत्मा में, पौलुस के आत्मा में प्रकट किया। So see who revealed the Son to Paul? तो कौन है जो पौलुस को पुत्र के बारे में बताता है? It is Father God who is revealing the Son in ये पिता परमेश्वर है जो पुत्र को पौलुस के ऊपर प्रकट करता है। So this knowledge in our inward spirit that Jesus is that Jesus who was born 2000 years ago, who came as a human being, he is the Son of God, and that revelation can come only by the Father. That every person seated here, I believe in their spirit, they should get this revelation. Otherwise they are not a child. ये प्रकटीकरण के 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आया था, वो प्रभु यीशु मसीह और कोई नहीं लेकिन जीवित परमेश्वर का पुत्र है। ये प्रकटीकरण हमारे आत्मा में सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर दे सकता है, और ये प्रकटीकरण हमारे आत्मा में आना बहुत जरूरी है। इसी से हमारा दोबारा जन्म होता है, जब पिता परमेश्वर जो है वो पुत्र को प्रकट करता है हमारे आत्मा में कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। What does 1 John 5 verse 1 says? और पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 1 क्या कहता है? We all know this, but still I'm taking. Whoever believes that this Jesus is the Christ is born of God. जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। And Father God, but both the Father and the Son are revealing to us through His Spirit. तो पिता और पुत्र
वो हमारे ऊपर प्रकट कर रहे हैं अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। So they are intrinsically in heaven right now, और पिता और पुत्र दोनों भी स्वर्ग में है इस वक्त, but through the medium of the Spirit, लेकिन they are आत्मा के dwelling, माध्यम के द्वारा they come to dwell in us. They want to dwell and make our heart their home, so that this becomes a permanent location. They हमारे dwell in us. आत्मा के माध्यम के द्वारा हमारे हृदय में आकर निवास करते हैं। पिता और पुत्र दोनों भी आत्मा के माध्यम के द्वारा हमारे हृदय में निवास करते हैं, ताकि हमारा हृदय जो है वो उनके लिए हमेशा का घर बन जाए। See 1 Corinthians chapter 2:10. पहला कुरिन्थियों अध्याय 2:10। So this revelation or the mystery, और ये प्रकटीकरण की रहस्य क्या है? this revelation or the mystery is in other sense, it is nothing but God the Father and Christ, which is mystery to the whole world, but it is revealed to us. How? Through His Spirit. Verse 10. और परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें See all things. परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। तो Praise the पिता Lord. और पुत्र ये दोनों भी संसार के लिए एक रहस्य है। संसार कभी समझ ही नहीं पाता कि परमेश्वर कौन है। संसार को कोई पता ही नहीं कि परमेश्वर और पुत्र कौन है। ये एक रहस्य, छुपा हुआ गुप्त बात है उनके लिए। लेकिन आत्मा हमारे ऊपर पिता और पुत्र का प्रकटीकरण प्रकट करता है। See this Colossians chapter 2 verse 2. कोलोस्य का अध्याय 2:2। That their hearts be encouraged and knit together in love, and attaining to all riches of the full assurance of understanding, to the knowledge of the mystery of God. What is that mystery of God? ताकि उनके मनों में शांति हो और वो प्रेम से आपस में गटे रहे। और यू आर टॉकिंग अबाउट वर्स 2, राइट? Verse 2. That mystery of God is mentioned here is nothing और but परमेश्वर पिता का भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। आमीन। पिता और मसीह दोनों को, परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। तो संजय एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज, हिंदी बाइबल में एक छोटा सा प्रॉब्लम है। वो जो अंग्रेजी बाइबल में पढ़ते समय, इंग्लिश बाइबल में पढ़ते समय में, कि वो जो मर्म का जो भेद है वो पिता और पुत्र के मसीह के बारे में है वो भेद, बट परंतु जब हिंदी में पढ़ते समय में परमेश्वर का भेद जो मसीह है करके ऐसा आया, परिभाषा में गलती आया है। परंतु ओरिजिनल ट्रांसलेशन में देखा जाए तो वो परिभाषा इस तरह है कि परमेश्वर का भेद जो पिता है और मसीह है, ऐसा आना चाहिए। परमेश्वर का भेद जो पिता है और मसीह है। This is a mystery. God is और one. ये रहस्य है। This is the whole world thinks. But God is Father and Christ, available to us in spirit. This is a mystery. और ये तो रहस्य है कि पिता और पुत्र, पिता और प्रभु यीशु मसीह, ये दोनों भी उपलब्ध है हमारे लिए। ये दोनों भी मौजूद है हमारे लिए अपने आत्मा के द्वारा। So all things of Father, which is mystery, it was not mystery to Jesus Christ. It was revealed to him. और सारा रहस्य पिता का, पिता की सारी बातें जो गुप्त है, जो छुपा हुआ है, जो रहस्य है संसार के लिए, दुनिया के लिए और सबके लिए, वो पुत्र के लिए कोई रहस्य नहीं है। पुत्र पिता को अच्छी तरह से जानता है। And this Jesus Christ is dispensing out of that all things in according to our measure capacity. He is revealing to us. He revealed to Paul so much, because Paul's capacity was high, was very wide, to receive more and more from that all things. And Paul was faithful to reveal to us what he received to us. Today we know because of through Paul only. और पुत्र जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, वो पिता को निरंतर प्रकट करते जा रहा है। वो निरंतर पिता के बारे में और बताते जा रहा है।
और हमारे ऊपर प्रकट करते जा रहा है। तो जितनी हमारी काबिलियत है, जितना हम ले सकते हैं, जितना हमसे हो सकता है, उतना ज्यादा प्रभु यीशु मसीह पिता को हमारे ऊपर प्रकट कर रहा है। पौलुस जो है, प्रेरित पौलुस जो है, उसकी जो काबिलियत है, वो ज्यादा से ज्यादा ले पाया प्रभु यीशु मसीह से पिता का रहस्य, प्रभु यीशु मसीह से पिता का जो छुपा हुआ बात है, पिता का जो छुपा हुआ गुप्त ज्ञान है, वो सारी बातों को प्रेरित पौलुस, क्योंकि उसकी काबिलियत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वो बहुत गहरा बर्तन था, वो उतना ज्यादा पिता के बारे में प्रभु यीशु मसीह से ले पाया। और प्रेरित पौलुस ने जो ज्ञान पुत्र से प्राप्त किया था पिता के बारे में, हमें दे दिया, हमें बताया अपने पत्र के द्वारा। So Paul's entire life was spent to just know from this all things. That is why he mentions all things, and which Jesus told to his disciples, all things have been delivered, and all things Jesus is now dispensing to the church. But church, if is eating, drinking, merry making, and given to marriage and sleeping and thinking about the world, they will get thenga. They will not get from this all things. और प्रेरित पौलुस जानता था ये सब बातें पिता का जो है वो पुत्र के पास है। प्रभु यीशु मसीह ने शिष्य को कहा था कि पिता की सब बातें मेरे पास है। प्रेरित पौलुस जो है वो पिता का ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह से ले रहा था। प्रभु यीशु मसीह जो है वो पिता की सब बातें आज कलीसिया को प्रदान कर रहा है, कलीसिया को प्रकट कर रहा है। अगर कलीसिया अपने ही खाने में, पीने में, अपने ही मौज में रह जाएगा, शादी करने में और अपने ही संसार की बातों में अगर व्यस्त हो जाएगा और अपने आप को उसमें एक कर देगा, तो पिता के बारे में, पिता की जो सब बातें हैं उसके बारे में वो कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा। And see, so Luke chapter 8 verse 10. और लूका का अध्याय 8 वचन 10, What does it say? See, I'm giving you secrets. I'm giving secrets. See, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांत में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी न देखे और सुनते हुए भी न समझे। So to परमेश्वर us, के राज्य का भेद को समझ दी गई है। it pleased the Father. It pleased the Father to reveal His Son in me. Paul says, it pleased the Father to reveal the mysteries of God to us. How blessed are we? But if we don't do verse 9, the mystery will remain mystery. That we all things will not get from that all things. Verse 9. What did they do? Verse 9. Disciples ये सारे asked him. Yeah. और ये सारा का सारा संसार के लिए एक दृष्टांत है। पिता जो है वो एक रहस्य है, एक छुपा हुआ बात है पूरे संसार के लिए। और जब तक पुत्र जो है वो पिता को प्रकट नहीं करेगा, हम कभी समझ नहीं पाएंगे परमेश्वर के राज्य के बारे में। वो हमारे लिए एक पर्दा बन के ही रह जाएगा, एक दृष्टांत बन के ही रह जाएगा। लेकिन उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जरूरी है कि हम वचन 9 को पढ़े। वचन 9 में क्या लिखता है? उसके चेलों ने उससे पूछा कि ये दृष्टांत क्या है? We should ask, we should seek, we should knock. That is why Bible says, seek the kingdom, seek the kingdom, seek the kingdom. Ask, seek. For whom ask, they shall receive. Who will seek, they shall find. Who will knock, for them the door will be opened. Beloved, this mystery which all things has been delivered to us freely. It has been delivered for us freely in Christ. Christ wants to dispense to us. But if you're not willing to spend time with Christ to receive from Him, then you cannot partake of the blessings which comes. See, what did Jesus tell Peter? Blessed are you. Why? Because he received it. He did not reject it. So each time when we receive from that all things, we are blessed. So blessing. So a believer who does not want to receive from the all things through Christ, then he is not blessed. So it's a very sad thing.
तो सब बातें जो है वो पिता की सब बातें, पिता का सारा रहस्य, पिता का सारा आशीष, सब बातें प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रभु यीशु मसीह को सौंपा गया है और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के ऊपर और हमारे ऊपर प्रकट कर रहा है। लेकिन अगर कलीसिया उसको चाहेगा नहीं, अगर हम वो सब बातों को लेना नहीं चाहते हैं, ये बहुत दुख की बात है। तब परमेश्वर का आशीष हमको मिलेगा नहीं, परमेश्वर का आशीष हमारे पास पहुंचेगा नहीं। परमेश्वर का सारा आशीष, परमेश्वर का सारा भेद, परमेश्वर की सारा रहस्य जो है प्रभु यीशु मसीह में हमें दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह में सौंपा गया है और प्रभु यीशु मसीह हमें अपने आत्मा में प्रदान कर रहा है, प्रकट कर रहा है। लेकिन अगर हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, अगर हम उसे अपनाएंगे नहीं, अगर हम उसे लेंगे नहीं, तो हम परमेश्वर का आशीष नहीं पाएंगे। Yeah, and you see, so what happens is, the Son of God was glorified because he received from Father God all things, and to the measure from that all things, how much we are blessed or we collected, according to that we will be glorified. तो पुत्र जो है उसको महिमा किया गया, पुत्र को सबसे ऊंचे स्थान में उठाया गया, पुत्र को महिमा किया गया, क्योंकि पुत्र के पास ही पिता का सारी बातें, पिता का सारा रहस्य सौंपा गया था। उसी प्रकार अगर हम पुत्र से प्राप्त नहीं करेंगे पिता का सारा रहस्य को, जब हम पुत्र के द्वारा पिता का सारा रहस्य को प्राप्त करते हैं, हम भी ऊंचे स्थान में, हमारा भी महिमा होता है, हम भी महिमा प्राप्त करते हैं। जैसे पुत्र ने महिमा प्राप्त किया, पिता का सारा रहस्य, पिता का सारा बातों को प्राप्त करके, हम भी जब पुत्र के द्वारा पिता का सारा रहस्य और उसकी सारी बातों को प्राप्त करते हैं, तब हमें भी महिमा मिलता है। So when Christ was filled with all things, when he came to know what is Father's will, all things of Father, when he was filled with the wisdom of God, he knew how to live a life pleasing unto God. He was careful so that he does not, falter before Father God, and in complete obedience he could live. और जब पुत्र को मालूम पड़ा करके पिता का ये इच्छा है कि मेरे द्वारा पिता जो है प्रकट होगा संसार के ऊपर, जब उसे पता चला तो वो प्रदान करने लगा, वो प्रकट करने लगा पिता को अपने लोगों के ऊपर। Because this mystery is nothing but mystery of what Father's will is. So the more क्योंकि we ये know रहस्य और Father's कुछ will, नहीं है, ये रहस्य सिर्फ यही है कि पिता का इच्छा क्या है। because the more we know Father and Christ, we will come to know automatically what their will is. It is a divine stage of the wisdom. जितना ज्यादा हम पिता को जानेंगे, जितना ज्यादा हम पुत्र को जानेंगे, उतना ज्यादा हमें मालूम पड़ेगा कि पिता का इच्छा क्या है। So when Corinthian peoples were blessed with this wisdom, then they understood how they have to conduct their life, and they repented, and then they knew how to walk. So God gives. So with the wisdom of God, or with the revelation of the mystery, each time the will of the Father and Jesus Christ is getting unfolded to us. So a fool then begins to know how to walk wisely before God in his temple. और जब कोरिन्थियों की कलीसिया को ये बात का समझ आया, जब उनको समझ में आया पुत्र का ज्ञान को, कि पुत्र पिता को हमें दे रहा है, तब उनको समझ में आया कि उनका चाल चलन कैसा होना चाहिए, तब उनको समझ में आया कि किस प्रकार इस संसार में जीना चाहिए, किस प्रकार इस संसार में चला जाना चाहिए। जैसे पुत्र को पिता का इच्छा मालूम था, और पुत्र जो है पिता का इच्छा को जानकर कि पिता चाहता है कि मैं उसका भेद जो है वो संसार के लोगों के ऊपर प्रकट करूं, उस प्रकार वो अपना चाल चलन, उस प्रकार का जीवन उसने व्यतीत किया। उसी प्रकार जब हम समझने लगते हैं कि पिता का इच्छा क्या है, हमें आसान हो जाता है इस संसार में हमारा जीवन प्रभु के परमेश्वर की इच्छा में व्यतीत करने के लिए।
So this mystery is another sense. It is the mystery of His will. We can understand from 1:9 of Ephesians, chapter 1, verse 9 of Ephesians. हम लोग इफिसियों का अध्याय 1:9 में ये रहस्य को समझ सकते हैं What does it say? Verse कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार mystery हमें of His बताया will. It और pleased सुमति God to reveal the mystery of His will to us. See this. ये So when परमेश्वर a को भाया, person, परमेश्वर को प्रसन्न हुआ कि उसकी इच्छा का जो रहस्य है, इच्छा का जो भेद है वो हमें प्रकट करे। so in other sense, when a mystery is revealed to the inner spirit of a man, revelation comes to him, then he begins to have a very conscious knowledge and understanding of what Father's will is, what's the will of the Jesus Christ. That helps him, that strengthens him, that the power of God comes in him and enables him to walk according to the will of God. This is how God is actually shepherding the new man. और जब प्रभु का इच्छा हमारे आत्मा में प्रकट होता है, जब पिता का रहस्य हमारे आत्मा में प्रकट होता है, तब हम समझ में पाते हैं करके किस प्रकार इस संसार में जीना है। तब हमें इस संसार में परमेश्वर की पवित्रता में जीना बहुत आसान हो जाता है। हमें मालूम पड़ जाता है कि किस प्रकार इस संसार में जीना है। So Paul prays for the Ephesians. We see in 1 verse 17. What is he praying? See, look at him. He is not trying to give do's and don'ts lecture to correct and perfect any church. He says, he prays that they, Corinthian church or Ephesian church or any church for that matter, they must get the revelation of who Christ is or the Father is in their inward spirit. See, he prays. Verse 17. और अध्याय 1 इफिसियों का अध्याय 1:17 में प्रेरित पौलुस जो है वो कलीसिया को, इफिसियों की कलीसिया को क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसा कुछ सिखाता नहीं है, लेकिन वो क्या कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। We know, so it is this is the prayer that we need to pray. यही प्रार्थना है जो हमें करना है। That I may know him and the power of his resurrection. What is Paul praying? Look at how Paul prays, chapter 3, verse 10 of Colossians. कि मैं उसको जानूं, और कोलोसियों अध्याय 3:10 में प्रेरित पौलुस क्या कहता है कि मैं उसको जानूं। Philippians 3:10. माफ करना, फिलिपियों का अध्याय 3:10। That I may know him. कि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करो। So see, now he's getting revelation. The more he gets the revelation of Christ, he understands the knowledge of Christ crucified. The message of Christ crucified becomes more and more clear to him. Then he understands that my God is such a God who gave up his flesh, who denied his flesh, who embraced the cross for making us one in him. So this is how he's building up the body. This is the same Paul, whom the Lord met in Damascus. Though the Lord met him in Damascus in the broad daylight, he saw, but he does not say that it pleased Father God to reveal Jesus Christ in Damascus. No, it is later on. We need to understand that it is in the spirit. In the spirit, only Father can reveal the mystery. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पौलुस है, प्रेरित पौलुस है, वहां उसे प्रभु यीशु मसीह का वाणी दमस्कस में सुनाई देता है, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं कहता कि दमस्कस में मुझे परमेश्वर का ज्ञान मिला या प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान मिला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो ज्ञान है, जो पिता हमें प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण जो देता है, जो प्रकट करता है, वो हमारे आत्मा में होता है, वो हमारे आत्मा में वो प्रकटीकरण होता है। और वो प्रेरित पौलुस को पिता ने बाद में प्रकट किया, दमस्कस में नहीं।
there he was Ananias, they preached him about Christ and the suffering Christ and how he entered into glory and all those things. He came to know through Ananias and then Ananias, yeah, and through Gamaliel, and we see that he connects the person whom he saw on the broad daylight. He says, Paul, Saul, why are you persecuting me? There Jesus Christ presented himself not as Son of God, but as church, as the body to whom he was persecuting. See, then he got the connection of the suffering Savior for the body. So then he understood, and then he says, he prays here that I may know the power of his resurrection, and being how through this old man can be put to death, which is the solution to the Corinthian problem. और प्रेरित पौलुस ने जो है वो सुसमाचार अनानियास के द्वारा सुना था। अनानियास ने जो है वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रेरित पौलुस को बताया कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मारे गए, किस प्रकार उन्हें क्रूस पे चढ़ाया गया, किस प्रकार उनकी मृत्यु हुई, किस प्रकार उन्हें गाड़ा गया, कैसे वो तीसरे दिन जी उठे, फिर कैसे वो स्वर्गारोहण उनका हुआ और आज पिता के दाहिने ओर में बैठा हुआ है। ये सारा सुसमाचार जो है वो अनानियास ने प्रेरित पौलुस को बाद में बताया। फिर प्रेरित पौलुस समझ पाया करके, हाँ, जिस दमस्कस में जिसने मुझे दर्शन दिया था, दमस्कस में जो आवाज मैंने सुनाई दिया था, वो प्रभु यीशु मसीह यही है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने दमस्कस में उसे एक कलीसिया का सर के रूप में, कि कलीसिया मेरा शरीर है और मैं कलीसिया का सर हूं, अगर आप कलीसिया को सताते हो तो आप मुझे सताते हो, ये वाला प्रकटीकरण दिया था। लेकिन जब अनानियास के पास प्रेरित पौलुस पहुंचा, तब अनानियास ने उसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का संतान होने का प्रकटीकरण बताया। And so then he understood that only through the power of resurrection life only can I lend my body, to arm my body to be crucified, to be with Christ, to allow to be suffering, so that more power of resurrection will vest in me. The more I give myself to the death, the more I conform to the death, the more the resurrection power will come in me. And in this way, he counted all things lost compared to gaining the knowledge of the excellency of Christ. So his life was only spent to know Christ and to know the Father God more and more and more, more and more and more. And this is the Christ and the Father which he, as a good steward, served us. और जब प्रेरित पौलुस को समझ में आया कि ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सामर्थ्य है जो मेरे अंदर कार्य करेगा, और जो मुझे जो है पिता के बारे में बताएगा, जो मुझे पिता का सारा इच्छाओं को, पिता का सारा भेद को, पिता का सारा रहस्य को जो है वो मुझे मेरे ऊपर प्रकट करेगा, तब जो है प्रेरित पौलुस जो है वो पिता का और पुत्र का एक अच्छा सेवक के रूप में हमें पिता और पुत्र का प्रकटीकरण दे पाया। You see that in Colossians chapter 2 verse 2, he says, attaining to all riches. This is that from that all things, not part riches, all riches. ताकि उनको मनों में शांति और वो प्रेम में आपस में घट रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। सारा धन, you see this, and to understand this, of the full assurance of the understanding, और पूरा समझ का सारा धन, वो सारा भरोसा, वो सारा ज्ञान जो है वो प्राप्त करें। Understanding the knowledge of this mystery of God, which is Father and Christ. So और प्रभु परमेश्वर का रहस्य जो पिता और पुत्र है, जो पिता और प्रभु यीशु मसीह है, ये रहस्य का पूरा ज्ञान, ये रहस्य का पूरा समझ हम प्राप्त करें। This the worldly people did not give. Paul says, God did not reveal to them, but to you it has been freely given to you, so that you may know them through His Spirit. ये संसार के लोग नहीं जानते, ये संसार के लोगों को नहीं पता, लेकिन परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा ये भेद, ये रहस्य पिता और पुत्र का, पिता और प्रभु यीशु मसीह का हमें प्रकट किया है, हमारे आत्मा में प्रकट किया है।
See, you know, you are well aware of the scripture, but still I want to share this. You know, in what does the Lord says in John 14, verse 23. योना का See, अध्याय see, 14 see, how वचन is he 23 manifesting? Verse 22. How is he going to manifest? वचन 22 उस यहोदा ने जो इस्करियोती न था उसने कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता है, कि तू अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता है और संसार पर नहीं। यीशु ने Verse उसको 23. उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरा वचन को मानेगा और मेरा मानेगा। पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ निवास करेंगे। Amen. You see this blessing of the co-inhabitation of the experience of the peace with the Son of God and the Father God is becomes is a continuous process which we need to continuously, you know, experience experientially, and it is available in our spirit. That is according to the measure of the mysteries getting opened up, which is the mystery of His will. And as the will unfolds, our obedience also follows. Because the और more we know जैसे His हम will, और the more we जैसे हम obey. और जैसे हम परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करेंगे, जैसे हम परमेश्वर की इच्छा को और ज्यादा समझेंगे, वैसे पिता और पुत्र ये दोनों का संगति का आनंद हम उठा पाएंगे। पिता और पुत्र का संगति ये एक निरंतर क्रिया है। हम लोग निरंतर पिता और पुत्र के संगति में बने रहते हैं, पिता और पुत्र का संगति का आनंद उठाते रहते हैं। लेकिन जितना ज्यादा हमें परमेश्वर का ज्ञान मिलेगा, जितना ज्यादा हम पिता और पुत्र का रहस्य को समझेंगे, जितना ज्यादा हमारे आत्मा में ये ज्ञान प्रकट होगा, उतना ज्यादा हम पिता और पुत्र के साथ निवास करेंगे। And so what does this mean? This is a very serious matter. Okay, listen, this is regarding the obedience, the blessing of the obedience. See, the Father God and Son of God mutual dwelling in us is a great blessing. It's a making home in और your heart. पिता और पुत्र दोनों मिलकर हमारे हृदय में रहते हैं, हमारे अंदर निवास करते हैं। ये तो सबसे बड़ा आशीष है। इससे बड़ा कोई आशीष नहीं कि पिता और पुत्र दोनों हमारे अंदर निवास करते हैं। You see, look at the situation. This is about the kingdom which has come in us. It has come once. It has come in us. We are in the kingdom. We are the kingdom people. But according to the measure of how much we let this king to rule and reign in us through our obedience, as his will unfolds, what happens is the kingdom in us is expanding, is magnifying in us, and according to that measure is our glory, our riches which we have attained. This is the riches which Paul is saying that you must attain. और परमेश्वर का राज्य हमारे ऊपर है, हम परमेश्वर के राज्य के हिस्सा है, हम परमेश्वर के राज्य में है। लेकिन जितना ज्यादा हम पिता को और पुत्र को जानेंगे, जितना ज्यादा पिता और पुत्र का जो प्रकटीकरण है वो हमारे ऊपर प्रकट होगा, उतना ज्यादा हम परमेश्वर के राज्य में महिमा और मुकुट और स्थान पाएंगे। तो जितना ज्यादा हम पिता को पहचानेंगे, जितना ज्यादा हम पुत्र को जानेंगे, उतना ज्यादा हम परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के किंगडम में, परमेश्वर के राज्य में उतना ज्यादा स्थान और उतना ज्यादा मुकुट प्राप्त करेंगे। When Jesus is saying, "Seek ye the kingdom," I always understand what to seek. The kingdom of God has come in me already. Now what to seek? Yes, the kingdom of प्रभु God has यीशु come मसीह in our कहता है, spirit. But और I have प्रभु to यीशु allow this. Sorry. और जब प्रभु यीशु मसीह कहता है पहले खोजो परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता, यहाँ पे परमेश्वर का राज्य को क्या खोजना है? परमेश्वर का राज्य तो ऑलरेडी पहले ही आ चुका है। अभी मैं क्या परमेश्वर का राज्य को खोजूंगा? परमेश्वर का राज्य को खोजना का अर्थ है पिता का इच्छा को जानना, पिता और पुत्र का जो रहस्य है, जो पिता और पुत्र जो हमारे आत्मा में प्रकट होता है, उसको और ज्यादा जानना। जितना ज्यादा हम मांगते हैं, जितना ज्यादा हम खोजते हैं, जितना ज्यादा हम ढूंढते हैं, उतना ज्यादा हमारे ऊपर प्रकट होते जाता है पिता का रहस्य और पुत्र का रहस्य।
This is the mystery. The mystery is nothing but the kingdom secrets are getting more and more revealed to us. We will begin to know how to walk in kingdom. According to और that ये measure, will God place us in high ranks in His coming kingdom, beloved. That is why He says, seek the kingdom. और यही रहस्य है, यही रहस्य है जो हम लोगों को समझना है कि जितना ज्यादा हमें पिता और पुत्र का ज्ञान मिलेगा हमारे आत्मा में, उतना ज्यादा हम परमेश्वर के राज्य में प्रगति करेंगे, उतना ज्यादा हम बढ़ते जाएंगे पिता के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में। You don't need to take Luke 12:32 says, little frog, it is your father's good pleasure to give you the kingdom. और लुका का अध्याय 4:32 में लिखा है कि पिता का यही इच्छा है कि वो तुम्हें अपना राज्य, परमेश्वर का राज्य दे दे। In Hebrews chapter 12:28, इब्रानियों 2:28, 12:28. सॉरी 12:28, The battery is going to get low. Started. इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दे, जिसके हाँ। द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। You see, so the kingdom has come in us, but we need to continue. Let this kingdom rule and reign in us. This has got to do with obedience to His will, the mystery which is opening to us. और परमेश्वर का राज्य तो आ गया है, लेकिन ये परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर निवास करना, बस हमारे ऊपर राज्य करना चाहिए। ये उसके ऊपर निर्भर है कि उसका रहस्य कितना ज्यादा हम जानते हैं। This is like the testimony of Christ has come in us. Christ और has वो come इस, and taken his abode in us. और इस प्रकार है कि But प्रभु the यीशु मसीह testimony का of गवाही हमारे continuously पास has है। to, सॉरी, but this testimony has to come continually maintained in us. लेकिन Remain in ये us. The प्रभु fruit must यीशु मसीह remain. का गवाही जो है वो निरंतर हमारे अंदर बना रहना चाहिए। This is with related to how God is in the spirit, in the, how is renewing a new man by this knowledge of the nature of His will, and in this way God is gaining, the church, which is His body, in whom He wants to fill all things. और ये ज्ञान में जो है वो पिता जो है वो पुत्र के द्वारा लोगों को जीत रहा है, कलीसिया को जीत रहा है, कलीसिया को लेके आ रहा है परमेश्वर के राज्य में। I hope you all understanding what I am trying to explain today. और मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। What this all things is about. ये सब किसके बारे में है? Ephesians chapter 1, in Ephesians chapter 1 verse 9 and 10. इफिसियों का अध्याय 1:9 और 10 Let's read that. हम पढ़ेंगे। कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप को ठान लिया था कि समय के पूरे होने को ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। सब कुछ। See this? All things in Christ. So it is the pleasure of the Father God that all things in Christ may be delivered to the church through, So this is what our loving Christ, as a good shepherd, as a good steward, He is ready to provide food to the church and feed the और church, यही पिता का इच्छा है, strengthen the church. और यही पिता का इच्छा है कि सब कुछ जो है प्रभु यीशु मसीह में कलीसिया को प्रदान कर दे, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे और कलीसिया को दे दे। हम सारे लोग सब कुछ प्राप्त करेंगे प्रभु यीशु मसीह में। You see, don't do the mistake what the Laodicean church will do. You know what? The end stage, instead of Christ and Father getting home inside us, Christ is outside the church. Christ is outside the heart. He is knocking the door. Of course, Holy Spirit is there in us, but He is grieving
but the presence of Christ and the Father is lost. The relationship is lost. और And yet हम they do not realize their poverty, because they have heaped up knowledge of God in intellectual brain, indoctrinated. It is not come to them as a revelation in the spirit. It has not broken their heart, because cross is not preached to them. Cross has not become life to them. So this और mystery is remained mystery to them. They और think they ले know, but they do not know. I'm talking about the personal revelation in the spirit, not the knowledge of what you have collected by reading books, by reading messages, by attending this Bible study also. Everybody has to have the inner light of the spirit. और हम जो है लेउदिकिया के कलीसिया के समान ना बन जाए। ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह बाहर खड़े होकर हमारे हृदय का दरवाजा खटखटाए, लेकिन हम जो है वो लोग बने। हमारे अंदर पवित्र आत्मा तो है, लेकिन हम पवित्र आत्मा को दुखाते ना रहे। वो लेउदिकिया कलीसिया के तरह उनको पता ही नहीं था कि वो परमेश्वर में गरीब हो चुके हैं, प्रभु में गरीब हो चुके हैं, आत्मा में गरीब हो चुके हैं। वो अपने ज्ञान के घमंड में कि हमारे पास तो बहुत ज्ञान है, हम तो बहुत कुछ समझते हैं, उसके अंधे अपने ज्ञान के अंधेपन में कभी ये समझ ही नहीं पाए कि परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में वो गरीब हो चुके हैं। It is so sad. It is so sad. और ये दुख की बात है। It is so sad. The believers have set their mind on the flesh, upon what to eat, what to drink, how will my career improve, how will I become my promotion come, how will my future be secure, what will happen tomorrow, all these things, hopelessness, and they're filled with, and their mind set on flesh. No. और Seek the प्रभु kingdom का of God, because Father God knows what you need. He will provide your needs. और परमेश्वर के लोग, दुख की बात है कि संसार के चीजों में मन लगाते हैं कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं किस प्रकार अपना भविष्य को सुरक्षित कर सकता हूँ, मुझे किस प्रकार प्रमोशन मिलेगा। हम सारे परमेश्वर के बच्चे लोग जो है वो संसार में मन लगाने लगते हैं। ऐसा नहीं है। पहले खोजो परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर को पता है आपको क्या चाहिए। पहला खोजो परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर तुम्हें सब कुछ दे देगा। See this? You know how Paul was clothed? If in today's world, if in any church a brother comes like how Paul came, we will not value that brother. We will not esteem that brother. You know how Paul did not have even a cloth properly to wear. You can come to in chapter 4, verse 11. और अगर He प्रेरित did not पौलुस set his आज mind on things of the flesh. प्रेरित पौलुस जो है आज की कलीसिया में जाएगा, अगर प्रेरित पौलुस आज के समय में रहता और आज की कलीसिया में जाएगा, तो आज की कलीसिया के लोग उसे स्वीकार भी नहीं करेंगे, उसे प्राप्त भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो कभी संसार की चीजों में, संसार की बातों में मन ही नहीं लगाता था। उसके पास पहनने के लिए भी ढंग के कपड़े नहीं थे। Read हम verse 11. देखेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 10 वचन 11 सॉरी। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं। You know, this he was in English word, it is poorly clothed. Not that he was naked, but poorly clothed. You know, today we want, high branded, clothes and garments. ओके। और यहाँ पे हम देखते हैं करके प्रेरित पौलुस जो है वो नंगा नहीं था, लेकिन वो बहुत गरीबों की तरह कपड़े पहनता था। आज हम देखते हैं कि हम तो बहुत ही ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। I feel I am not worthy to even preach this to you all. I am ashamed of myself. और मुझे लगता है करके मैं योग्य नहीं कि ये तुम्हें मैं प्रचार करूं, क्योंकि मुझे अपने I आप have के to काम confess, आता I है। have wasted time in my spirit, not seeking the kingdom, not seeking the righteousness, not seeking the mystery of His will, not seeking the Christ. I have wasted my time. I must confess. और मैंने अपना बहुत समय बर्बाद किया है।
परमेश्वर का राज्य का खोज नहीं करते हुए, अपनी खुद की स्वयं की इच्छा का खोज करते हुए। So I request you, my brother, you please understand the message of chapter 2. What Paul is trying to, how Paul is trying to correct the Corinthian problem. He wanted their spirit to attain all the richness of Christ. He wanted them to know, not to boast in anything else, but only upon this humble Christ. He और wanted मैं them to know चाहता हूँ that you कि must become fool to attain the wisdom of Christ. और मैं चाहता हूँ कि आप ये बात को समझे कि प्रेरित पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया को कौन सा रहस्य दे रहा है। वो चाहता था कि हम समझे कि हम एक मूर्ख बनके, निर्बुद्धि बनके परमेश्वर से प्राप्त करे, परमेश्वर से ले सके जो प्रभु ने, परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। I don't want to go on and go on and go on, but I want you all to understand that you have a spirit inside you, beloved, and the God has given you Holy Spirit to you because it pleased the Father God to give you the Holy Spirit. It is let like Laodicea Church, let us not grieve the Holy Spirit by seeking the kingdom of the world, the worldly things, but let us see this is mystery of God and Father. May we know and grow in the excellency of the knowledge of Christ and Father. In this matter, let us give ourselves totally. और परमेश्वर ने हमें हमारी आत्मा दिया है और पवित्र आत्मा भी दिया हुआ है ताकि हमारी सेविकाई कर सके। I'm आओ sorry, I हम did not realize. की कलीसिया के समान ना बन जाए जो अपने समझ, अपने बुद्धि में घमंड करके परमेश्वर में गरीब हो गए, जो संसार की सारी चीजों और संसार के सारे बातों में मन लगाने लगे। हम वो लेदूसे की कलीसिया के समान ना बने, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य में मन लगाए। One verse, and I want to keep quiet. Luke chapter 10, verse 20, I think, yeah, 10:21. लूका का No, I अध्याय think, 10:21 पढ़ेंगे। yeah. उस घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। आमीन। Praise the Lord. So, आमीन। beloved, you know how valuable you all are. You know how precious you are. Every मेरे single प्यारों, तुम brothers and कितने sisters is कीमती, तुम valuable. कितने मूल्यवान हो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कितने कीमती और कितने मूल्यवान हो? Today, I want to encourage every believers who are fearful when they are thinking about their worldly affairs, which is not sounding good, and they are desperate and they do not know what will happen tomorrow. To them, I want to encourage. Our Lord's word says this, chapter 12, verse 32. This is the prophetically the Lord is asking me to encourage you all. और Luke chapter 12, हम verse 32. और हम सारे लोग जो संसार की चीजों में, संसार की बातों में मन लगाते हैं, मैं चाहता हूँ, ये एक परमेश्वर का भविष्यवाणी का वचन है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Which book, brother? Luke chapter 12, verse 32. Sorry, brother. लूका Luke का 12, 32. अध्याय वचन 32। ए छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यही बाया है कि तुम्हें राज्य दे। आमीन। Amen. एक Praise the छोटे Lord. झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को बाया है कि तुम्हें राज्य दे। आमीन। You know why he says not to fear? Because in verse 21 and 31, you know, do not be like the world, you know, seeking what to eat, what to drink. These Gentiles seek. I have given you the kingdom, the best thing which the world did not get. You don't worry about the earthly matters. I will take care of it. Don't worry. Don't fear, little flock. I'll take care of it. You just spend time setting your mind on the Spirit, setting your mind in the kingdom of God, knowing the mystery of God and the Father, knowing the mystery of Father in Christ, knowing the mystery of His will, knowing what is freely given to you in Christ. Know that all things, attain to all that riches, attain to that excellency of the knowledge of Christ. In this you give, in this you give. Since the kingdom of God has come in you, let this kingdom of God, by grace, allow it to develop in you. So that one day when
when the kingdom will come, I will bring you, I'll exalt you before everyone in higher ranks, because और you gave me in your heart the place to dwell. और ए छोटे झुंड, अपना मन जो है वो संसार में मत लगाओ, संसार की चीजों, संसार की बातों में मत लगाओ, लेकिन अपना मन परमेश्वर में लगाओ, पितर और पिता में लगाओ। और यही पिता को बाया है कि वो तुम्हें बाया है कि तुम्हें राज्य दे। तुम जैसे प्रभु यीशु मसीह आएगा अपना राज्य में, वो तुम्हें और ज्यादा महिमा और ज्यादा ऊंचा स्थान देगा, क्योंकि तुमने संसार में मन नहीं लगाया, लेकिन परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के रहस्य के ऊपर, परमेश्वर के भेद के ऊपर, पिता और पुत्र को जानने में अपना मन लगाया है। I can go on and go on and go on. Verses are coming one after another. So what I'm trying to encourage you all, brothers, is that let the same Spirit also guide you and enrich you with words. Spend time with the Holy Spirit. Enjoy और the वही words. परमेश्वर का आत्मा तुम्हें और अमीर बनाए, तुम्हें और भरे। मैं और बताता जा सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा तुम्हें और अमीर बनाए परमेश्वर के रहस्य में। If the Lord helps us, if the Lord gives us time, we will get into the study of the new man, which is connected to this chapter 2. अगर परमेश्वर हमें समय देगा तो हम नए मनुष्य के बारे में सीखेंगे, जो अध्याय 2 में इसी के साथ जुड़ा हुआ है। Praise the Lord. Amen. प्रभु की स्तुति हो। आमीन। I will just like to take 5 minutes. Please, brother, please. Time has already exceeded, but because we are in the flow, I would like to continue the flow only for 5 minutes. Yeah, somebody else can interpret. Okay, I can. If Benzi wants to do, it's fine. No, brother, you continue. Ephesians chapter 1 verse 22. एफिसियों का 1:22 पढ़ेंगे हम। So here it says that, and he hath put all things under his feet and gave him to be the head over all things to the church. इधर लिखा है कि और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। I know when normally when we read the scripture, we think that Jesus Christ defeated all the principalities and powers which comes against the church, and he has put them under his feet. हम जानते हैं कि साधारण रूप से जब ये वचन को पढ़ते तो लोगों के अंदर ये मनोभावना आती है कि इस वचन का अर्थ ऐसा है कि यीशु मसीह ने सारी जो दुष्ट शक्तियां और प्रधानताएं जो उसको हराकर विश्वासियों के पैरों तले शैतान को कुचलने के लिए दे दिया है। And that is true in one sense. एक अर्थ से, एक नजरिया से वो तो सच है बात। But here, since we are discussing about the topic of all things which been given to Jesus Christ. और क्योंकि हमारा मुद्दा जो आज का जो था वो था है सब कुछ जो मसीह को दिया गया है, वो विषय है। And it pleased God, it pleased Father God to give all things to the Son, and it pleased Son to give all things to the church. ये भाया पिता परमेश्वर की सब बातें पुत्र को दिया जाए और सब कुछ पुत्र कलीसिया को दे रहा है। We know that in when we read in Matthew, हम जानते हैं जब हम मत्ती का हम सुसमाचार पढ़ते हैं, there when we read in Matthew chapter 28, तो मत्ती के 28 वचन में verse 19, there the Lord says that all things has been given, all authority is been given unto me. Verse 19, verse 18. इसलिए 18 वचन में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Yeah, based on this aspect is what we can read in Ephesians chapter 1 verse 22, that all things is under his feet means all authority is with Jesus Christ. Whenever we think, whenever we read that all things is under his feet, से समझ सकते कि 22 वचन में कि सारे अधिकार जो स्वर्ग में और भूमि में सब कुछ। Yeah, normally when we read all things has been put under his feet means that all authority is with Jesus Christ only.
साधारण रूप से जब पढ़ते वक्त वचन में जब लिखा है कि सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, कहते वक्त हम लोग ये समझते हैं कि सारे जो दुष्ट शक्ति के और प्रधानता है उनको यीशु मसीह के अधीन में दिया है, ऐसा हम समझते हैं. But in reality, the true meaning is that all power is with Jesus Christ. But He is the ruler, He is the controller. Everything is with Him. Even all the knowledge and wisdom that we need to understand of that power and authority is also with Jesus Christ only now. लेकिन हम समझना चाहिए कि इस वचन का अर्थ बहुत गहरा है और इसका बड़ा बड़ा अर्थ है, क्योंकि इसमें सब कुछ, मतलब सब कुछ, उसमें सब कुछ समा गया है. सारे बातें जो स्वर्ग में भी है और सारे बातें जो पृथ्वी में भी है, सारे जो सामर्थ, जो सारे बुद्धि जो चाहिए, सब कुछ जो भी हमें चाहिए, सब बातें जो मसीह में समाया है. Here in Matthew 28, when we read, Jesus is telling His disciples, He is commissioning His disciples so that they can go and establish the churches on the entire earth. और ये जो वचन 18 में लिखते हुए पता चलता है वो कि वो जाकर तुम जाओ, क्योंकि पृथ्वी और सारा स्वर्ग का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाकर तुम जाति के लोगों को चेला बनाओ, बपतिस्मा दो. So that church will be, local churches will be formed. और उन्हें वचन verse 20 also, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, तो ताकि कलीसिया उत्पन्न होए. Yeah, based on that aspect, same thing when we read in Ephesians chapter 1 verse 22. And when the church is established, the church should know that who is the head of the church. It is none other than the all-powerful, the Almighty, who knows all things, that is Jesus Christ. He is the head of the church. इसलिए जब एक कलीसिया जब स्थापित हो जाती है चेलों के सुसमाचार देने के द्वारा, तब वो कलीसिया को जानना जरूरी है कि वो कलीसिया का मुख्य कौन है, जिसका शिरोमणि कौन है. वो है यीशु मसीह, जिसको सारे सामर्थ स्वर्ग और पृथ्वी का दिया गया है, उसके अधीन में. Yeah, so today while we are discussing having fellowship, if you do not realize that Jesus, this all thing is nothing but the person Jesus Christ, then what kind of church we are? और आज के कलीसिया के जीवन में अगर ये सब कुछ बातें क्या है, उसका सही अर्थ कि वो मसीह के विषय में कहा गया है, यही सच्चाई अगर प्रकट नहीं हुआ तो फिर हम लोग कौन सा प्रकार का कलीसिया जीवन जी रहे. Yeah, all things is actually nothing about it, but it is Jesus Christ Himself. ये सब बातें मतलब और कुछ नहीं, वो मसीह स्वयं है. Yeah, and it pleased the Father to reveal this all things of Christ, which is only of the Godhead, to reveal to the church. और ये पिता को भाया कि उसके सब कुछ बातें वो पुत्र को के द्वारा कलीसिया को बताए. See, all things is only limited to God. It is only for God to know all things. जो सब कुछ बातें वो तो केवल परमेश्वर में सीमित है, क्योंकि केवल परमेश्वर ही पूर्ण रूप से सब कुछ जान सकता है. Yeah, but what? So काबिलियत रखता है. But what did Father God, Son God, and Holy Spirit in their council? It pleased them to elect the church before the foundation of the world. We were chosen in Him so that in the right appointed time we may know all things. लेकिन पिता ने क्या किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो तीन त्रिएक परमेश्वर ने क्या किया, उन्होंने एक दूसरे के साथ उन्होंने ये ठान लिया, निर्णय लिया कि लोगों को चुनेंगे और उनको और बातें हम लोग बताएंगे. Yeah, if you read in 2 Corinthians 5 verse 18, पहले कुरिन्थियों का 5:18 अगर पढ़ेंगे तो only the first line, all things are of God. देखो क्या लिखा है, पहला वो लाइन पढ़े, और सब बातें परमेश्वर की ओर से है. Yeah, all things are of God. Only God is the right person, eligible person to know all things, and in Him consist all things. केवल परमेश्वर ही है जो सब कुछ बातें जानने का काबिलियत रखता है, क्योंकि सब कुछ उसी में ही समाया हुआ है, उसी में सीमित है. He is the true owner of all things. वही ये सच्चा मालिक ये सारे बातों का, बातों का. But then what happened? लेकिन क्या हो गया फिर?
one day, एक दिन when we read in Hebrews chapter 1 verse 2, we see that Jesus Christ, he inherited these all things. इब्रानियों का 1-2 में पढ़ेंगे, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुएं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी वस्तुएं का वारिस ठहराया. Unto his son, upon whom has appointed the heirs of all, the heir of all, who is the heir of all things to know, that is from Father God, only Son God knows it. तो केवल पुत्र ही जानता है कि वे ये सारे बातों का वारिस कौन होगा. No, सब बातों का वारिस केवल पुत्र को ही सारे वस्तुओं का वारिस ठहराया. Yeah, because all things is only limited to Godhead. Man should not know. Man is not supposed to know it, or it is not related to man. But it pleased God to reveal all things to man. ये तो केवल पिता परमेश्वर पुत्र में सीमित था कि सारे बातें जो है उनका, लेकिन पिता को ये भाया कि ये सारे बातें केवल उनमें ना सीमित रहे, वरन हम लोगों के ऊपर भी वो प्रकट होवे. Yeah. So who was the first man who got the heir, who got to know all these things? That is our Lord Jesus Christ. तो पहला मनुष्य कौन था जो सारे बातों का वारिस ठहराया गया? वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह. And this Jesus Christ is now what? He is the head of the church. And this Jesus Christ has been given to us so that we may also, only the church will also know these all things. और ये यीशु मसीह हमें दिया गया है, अथवा उसको कलीसिया का शिरोमणि ठहराया है, ताकि वो सारे वस्तु जो उससे मिली है वो कलीसिया को वो बांटे. So and then one last verse, Ephesians chapter 1 verse 23. So this Jesus Christ, who is the all things, the head of all things, is been given to the church, which is the body, the fullness of him that filleth all in all. और जो सारे बातें जो यीशु मसीह ने जो दिया है वो कलीसिया को देकर, इस तरह ये उसकी देह है जो कलीसिया है, और उसकी परिपूर्णता है, वो देह को भर कर सारे बातें वो भर के कलीसिया को परिपूर्णता में ला रहा है. Yeah, today the church through the fellowship with God is getting enriched by knowing the all thing. इस तरह संगति के द्वारा कलीसिया यीशु मसीह से प्राप्त करते जाते वक्त हम लोग सब बातों में हम लोग धनवान बनते जा रहे हैं. हम वो सब बातें जान रहे हैं. Yeah, we are able to know the all thing. We are able to know the all thing. Because you said enrich, that is what I said. सब बातें मतलब धनवान बने, मतलब हम लोग सब बातें को जानने लगेंगे. We may be enriched to know the all thing. ताकि हम लोग धनवान बने कि और उसे सारे बातें जाने. That all thing is nothing but Christ himself. कि सब बातें और कुछ नहीं है, वो वरन वो यीशु मसीह ही है वो सब बातें. May the Lord encourage us and bless us so that in the coming days we may able to know the all thing. आओ कि हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, ताकि आने वाले दिनों में हम और अधिक वो सब बातें क्या है वो अधिक समझने लगे. Praise the Lord.